दीक्षा रिवीजन कर लिया पुराना। हम्म। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने पहली ऑपरेशन शायद कर लिया था। इफ वी हैव दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। A union B is X such that X belongs to A or X belongs to B, right? And I told you that whenever you find union of sets, always a bigger set. अगर दो सेट्स का यूनियन फाइंड करोगे हमेशा बड़ा सेट आएगा. For example, if you have A as 1, 2, 3, 4, set B is 2, 4, 5, 6, 7. So in the union, what do you do? The common elements are written once, and uncommon also written once. So it will be always a bigger set. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that will be A union B. Kavya, switch on your camera. Then I think we must have done A union B is always B equal to B union A. That is, union on sets is always commutative. If there are two sets, the union would be always commutative. A union B is equal to B union A. If you find A union A, what will you answer? A union phi, A union universal set. Tell me the answer. Yes. Sir, I'm on my way to class. I will be there in 15 Okay. Okay. minutes. All I right. had another class going on. Achha. All right. So A union A would be A union phi would be A, and A union universal set would be universal set. The union of set always gives a bigger set. Perfect. What if you have A union B is equal to B? What can you say about A and B? Because union always gives you bigger set. That means out of A and B, B is a bigger set. So A is a smaller set. So A is subset of B. Okay? This was union of sets. Next operation. यही किया था last class में ना? Last में. Okay. The next operation is intersection. Intersection, the symbol is this. This is A intersection B, and it is X such that X belongs to A and X belongs to B. This inverted V stands for AND. So whenever you find intersection, it will be those elements which are common to both the sets. That is, if you have X belongs to A intersection B, it would imply X belongs to A and X belongs to B also. So if you have some element belonging to intersection, it should be common to both. So when you find intersection of sets, it'll be always the common elements. Like in the previous example, if I ask you to find A intersection B, so what will be A intersection B? The common elements, right? So it will be 2 and 4 only. So see, whenever you find intersection of sets, you always get a smaller set. Maybe equal also sometimes, but otherwise, it'll be always a smaller set. So intersection always give you smaller set. So if you find
A intersection A, tell me the answer. A intersection universal set, A intersection phi, and if A intersection B is A, what do you say about relation between A and B? A intersection A would be A. This is A. This will be again smaller set A, है ना? A intersection phi would be phi, the smaller set. And what about this? A is a smaller set. Out of A and B, A would be a smaller set. That is, A is subset of B. So intersection of two sets always gives a smaller set. Now, what if you have this situation? If you have two sets such that the intersection is a null set, what do you say about A and B? What is the name given to A and B? If intersection of Disjoint sets. yes. So if A and B, A intersection B is a null set, that would mean they are disjoint. So this was intersection of two sets. लिख लिया दिव्या? Third operation is difference. Difference of two sets. Don't read it A minus B. It is A difference B. Minus sign is for algebraic numbers. We are talking about sets. So A difference B का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये होगा एक्स. दिव्या तुमने मेरे को रिकॉर्ड के लिए बोला आज? अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड है. X such that X belongs to A and X does not belong to B. That is the meaning of A difference B. A difference B का मतलब वो सारे एलिमेंट सेट A के जो B में नहीं हैं. Those element which are in A but not in B. लिख लो इसको यहाँ पे. Those elements of set A which are not in B. So that is A difference B. Those elements of set A which are not in B. Similarly, what will be B minus A? It would be X such that X belongs to B and X does not belong to B. So that will be B. Right, sorry. So it is those elements of set A, set B, which are not in A. Example लेते हैं. Suppose set A is 1, 3, 5, 7. Set B is 2, 4, 6, 5, 7, 9. Tell me what is A difference B? What is B difference A? What is A difference B intersection B difference A? And what is A difference B union B difference A? Find all these. तुम कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो मतलब? अच्छा तुम. अच्छा, मिस हो गया थोड़ा तुम्हारा, है ना?
थोड़ा मिस कर दिया तुमने। 4:45 क्लास होती है आज। सैटरडे 4:45, ट्यूसडे 5। ये लिख लो एक बार। Sir, can I tell the answers? Yes, tell me the answer for the first one. 1, 3. Those elements of set A which are not in B. So 1 and 3 are in A but not in B. Perfect. Second बताओ. Those elements of B which are not in A. 2 is not in A. Then 4 is not there. 6 is also not there. Then 9. 5 is there. 7 is also there. So B difference A would be those elements of set B which are not in A. Now what about their intersection? 5. They are disjoint. A difference B and B difference A will always be disjoint sets. The intersection would be always 0. वो लिख लो एक बार. A difference B is those elements of set A which are not in B. And what about A difference B? Union B difference A? 6, 9 है ना. So जो लास्ट वाला है ना, इसका एक नाम भी है. इसको you represent by writing A delta B. This is also called A delta B. Kavya, do you know what is the name for this? No, sir. Anyone? A delta B. A delta B is basically called symmetric difference of two sets. लिख लो. It is symmetric difference of two sets. A difference B union B difference A, because the intersection would be always a null set. So it is a symmetric difference of two sets. Let me write another set C over here. 1, 5, 2, 9, 8, 10. Can you find symmetric difference of A and C? Find symmetric difference of A and C and B and C. Find symmetric difference of A and C and that of B and C. समझ में आ गया तुम्हें? देखो, हाँ, A माइनस A डिफरेंस B बोलते हैं इसको. तो जैसे सेट A है 1 3 5 7, सेट B कितना है 2 4 6 5 7 9. एग्जाम्पल ले रहा हूँ. A डिफरेंस B का मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट है विच आर नॉट इन B. हाँ, उसमें क्या करना है, A डेल्टा B अगर है तो A माइनस B, A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस है, दोनों निकाल के यूनियन निकाल दो उसका. यूनियन किया था ना लास्ट क्लास में, वो है. So when you're finding symmetric difference of A delta A and C, it would be A delta C, that is A difference C union C difference A. So what is A difference C? A difference C means those elements of A which are not in C. 3 and 7. Union C difference A. What is C difference A? Those elements of C which are not in A. 2, 9, 8 and 10. Right. So A delta C would be there's union. So it is 3,
7, 2, 9, 8, 10. And again, if you find their intersection, it will be a null set. If you find A difference C, intersection C difference A, it will come out to be a null set. What about B delta C? B delta C would be B difference C union C difference B. Kavya, what is B difference C? So B difference C is 6, 7, 9. Divsha, what is C difference B? Divsha, C difference B. हाँ, बी डिफरेंस सी में 4 भी आएगा. हाँ काव्य 4 भी आ रहा है इसमें तो. 9 तो सर 2, 4 अच्छा 4 6 7 9. 9 ठीक. नहीं आएगा. हाँ 9 इज नॉट देयर. दोज एलिमेंट्स ऑफ आई बी. थॉट आई थॉट वो जो सी में है वो 2 के बाद 9 नहीं नहीं, लिखा है. सी में आई थॉट 2 के बाद 9 लिखा है. 9 ही लिखा है वो. यू आर ओ आई राइट. थॉट 4 लिखा है. आई थॉट 4 लिखा है. ओके. सो बी डिफरेंस सी वुड बी दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन सी, विच आर बेसिकली 2 is not there in C. 4 is also not there in C. 2 is there in C. And 6 is not there. Uh, And 7 is also not there. Shouldn't 2 it is, be अच्छा, 4? 2 is there. 2 is there. 4 is not there. 6 is not there. 7 is not there. And what about C difference B? Dvisha तुमने किया? 1, 8, 10. 1 8 10. C difference B का मतलब those element of C which are not in B. Because 5 is there, 2 is also there, 9 is also there, right? And then the union is this 4 6 7 1 8. So whenever you find A difference B and B difference A, there'll be always a disjoint sets, and the union would be something like this. So now you know difference of sets, union of sets, and intersection of two sets. आगे बढ़े अब. Next is complement of a set. Complement of a set is written like this, A complement, or like this also. It basically means not A, and it is universal set difference A. It is universal set difference A. Those elements of the universal set which are not in A, right? And if you find complement of complement, it will be always the same set again. Complement of complement would be the same set again. What will be complement of universal set? 5. It will be phi. What will be phi complement? It will be universal set. Perfect. So now we know all four operations. What I'm going to do is I'll write few sets and few results, and then you need to verify those using the sets. Suppose set A is this, set B is 2, 3, 6, 7, set C is 3, 4, 7, 5, 8, 9, 10.
If your left hand side equal to right hand side, we'll say it's verified. If LHS is not equal to RHS, that it's not verified, right? And you can take those sets. There's no hurry, आराम से करना है. पहले इतने वेरीफाई करो. Sir, what floor is the class on? I forgot. The class starts on Tuesday at 4:45. No, sir, what floor? Fifth floor. Okay. And the tower, you remember? Yes, A. Okay. सेट में लिख लो ना, एक बार तुम रिवाइज कैसे करोगी? ठीक है, मैथ के लिए रजिस्टर बना लो मोटा सा अच्छा सा. If LHS equal to RHS, it's verified. That result you have to remember. If it's not equal, then it's not verified, right? कौन सी क्लास है तुम्हारी अभी? अच्छा अच्छा. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? LHS 1 2. 347. All right. And what about RHS? Same. Hmm? Same आ रहा है. They're not equal. So this is not verified, right? Same. कर कर लो सारे. तुम्हारा क्या होगा?
इंटरसेक्शन तो भूल गए, इंटरसेक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, कॉमन। तो फिर बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, विल बी अ स्मॉलर सेट। मेरा फर्स्ट वाला वेरीफाई हो रहा है। क्या बात कर रही हो, ऐसे मत बोलो, बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है? ओ ठीक, सॉरी। हम्म। रिजल्ट्स हैं, मतलब कंसिडरिंग दोज सेट्स, यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर नॉट। देख के बिना देखे कैसे करोगी? ने किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हाँ। ये कौन से वाला है, फर्स्ट? कॉमा लगाओ। ये वाला देख के पता है तुम्हें? क्यों? हाँ। आई विल शॉर्टकट फॉर दिस। कर लो एक बार इसको लिख के। हम्म। And this is A, B, what is B union C? B union C is this. So those elements of set A which are not in this. You're doing ulta. Those elements of A which are not in this. इसके एलिमेंट जो इसमें नहीं है, ना कि अदर वे अराउंड। पहले वाले से इसके कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है? इसके दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन दिस। आंसर इस सेट से आएगा, दोज एलिमेंट ऑफ दिस विच आर नॉट हियर। नो, वन। टू है इसमें, ठीक है, थ्री भी इसमें है, फोर भी इसमें है, वन नहीं है, तो वन आएगा। दैट इज वाई। ठीक है, वेरीफाइड है, हाँ, नेक्स्ट कर लो। दिव्या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया वेरीफाई। यस। सेकंड में बोथ द साइड्स आर इक्वल टू सेट कंटेनिंग वन, है ना? काव्य थर्ड? नहीं। हम्म। 142 ना, हाँ। बोर्ड पे करो, दिखाओ। दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन दिस। तुम शॉर्टकट लगा रही हो ना? हाँ, सही है, अब सही है ये। जल्दबाजी मत करो। अब मैं तुम्हें सेकंड एंड थर्ड का शॉर्टकट बताता हूँ।
दिस इज, अद्विका हो गया वाला थर्ड, क्या आ रहा है? 1 to 4, राइट। इसको याद करने का तरीका है कि जो डिफरेंस है ना, इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस। जैसे कि ब्रैकेट के अगर नेगेटिव साइन अगर है, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो साइन चेंज हो जाता है ना, इट बिकम्स माइनस प्लस लाइक दैट। तो वेरी सिमिलर टू दिस, व्हेन यू हैव ए डिफरेंस, भी डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन कन्वर्ट इनटू union converts into intersection, intersection converts into union. So difference gets distributed A difference B in intersection A difference C. So difference is getting distributed over union, and here it's on the intersection. सिर्फ याद ये रखना है कि साइन चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, यूनियन becomes this and intersection becomes union. So these are two results which you have to remember. नहीं है तो वेरीफाई कैसे हुआ फिर? वेरीफाई का मतलब दे आर इक्वल। देखो यहाँ पे तुम भी वही गलती कर रही हो, फर्स्ट वाले में 1 1 था। हाँ तो फर्स्ट नॉट वेरीफाइड था, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। सो फर्स्ट इज नॉट ट्रू, वो तो नॉट वेरीफाइड आ गया, ये तो वेरीफाई ना, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका एलएचएस बताओ क्या आ रहा है? ये गलत हो रहा है। बी बी इंटरसेक्शन सी कितना है? एंड ए इज 1 2 3 4, सो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट हियर। बी इंटरसेक्शन सी में 2 कैसे आ रहा है? 2 नहीं आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। कौन सा वाला? ए, तुमने फिफ्थ कौन सा रहा? इसका आरएचएस और लिख दिया, क्वेश्चन ही गलत कर रही हो तुम। देखो ये वाला वेरीफाइड था ना। हम्म। किसको? तो तुमने गलत कॉपी किया है ना। अच्छा ये गलत था ना, हाँ तो फिर क्या आ रहा है? फिफ्थ वाला। फिर जल्दबाजी कर रही हो, नहीं होगा, नहीं होगा। आर, फिर तो तुम गलत कॉपी कर रही हो ना। फोर्थ आ रहा है अद्विका, वेरीफाई हुआ है? हो गया ना फोर्थ? दिव्या फोर्थ हो गया, हो गया। वेरीफाइड है। फोर्थ का क्या आ रहा है? दोनों साइड पे 2 3 4 आ रहा है। कितना? 2 3 4। 2 3 4? नहीं, करो बोर्ड पे कर दो ये। इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कहाँ निकाला तुमने? या राइट, देन यू फाइंड इंटरसेक्शन। तो 2 इंटरसेक्शन वाले हो गए थे, ये तो वेरीफाइड नहीं था ना। ठीक है। हाँ राइट, दिस is RHS, and then you find the LHS also. ये कौन सा थर्ड? तो वेरीफाइड था। थर्ड वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है? ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी?
कॉमन इन बी 3. इसमें 2 कैसे आ रहा है इंटरसेक्शन में? Intersection means a common part. So 2 will not be there. So it'll be, no, it'll be 3 also. 3 is there, 6 is there. 6 is also 2 and 7. This is 2 and 7. कौन सा? हाँ. So this is also verified. Universal set, हाँ, 1 to 10 ले लो. For this, you take universal set as 1 to 10. हाँ. Yeah, that is a property. अभी तो मैं as it is solve करना है. तुम सारे लिख के करो. कौन सा? तुम जल्दबाजी करके गलतियां भी तो करती हो. See, JEE में if you make a mistake, so where you're getting 4 marks, you get -1. That means a loss of 5 marks. 5 mark के loss का मतलब होता है your rank shift by 1000. मतलब, and the SP Delhi is still 175 200. SP Bhopal is about 400 rank. SP Vijayawada is 600 rank. So one question here and there, you are out of the contention for SPAs. So you need to be very careful. मैथ्स में भी कितने आए तुम्हारे 10th में? हाँ, तो तुम जल्दबाजी करती हो ना. ऐसा हो ही नहीं सकता. So you have to be in the moment, and you'll be in the moment when you're working hard. You're not working hardly. You guys are working hard, and then patience भी होना चाहिए. जल्दबाजी मत करो. When the paper is easy, you make hurry and you make silly mistakes. वो नहीं करना है. ऐसा होगा नहीं. उसका एक तरीका होता है. जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो. नहीं नहीं, जो आता है उसको करो पहले. वैसे एमसीक्यू हो, 3 मार्क हो, 4 मार्क हो, 5 मार्क. किसी पेपर में दिस इज द स्ट्रैटेजी. जो आता है उसको सबसे पहले करो. देन जो नहीं आता है उसको एंड में करना है. अदरवाइज सपोज पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, वो नहीं हुआ. वन ऑफ द जेई पेपर्स लास्ट टू लास्ट ईयर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स वाज इनकरेक्ट. मतलब उसके 4 ऑप्शन सही नहीं थे. विच इज इनकरेक्ट क्वेश्चन. होता है अक्सर. तो जिसने उसको पकड़ लिया उसको ट्राई किया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर तो ही लूज स्कूल. अरे अब तो गए. तो जो आता है उसको पहले करोगे तो एंड में क्या होगा, जो नहीं आता उसमें भी तुम चांस ले सकते हो. इफ यू कैन रूल आउट 2 ऑप्शंस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, यू ऑलवेज आंसर दैट क्वेश्चन. क्यों? अगर दो हमने ऑप्शन पता कर लिए, दोनों नहीं हो सकते, बिकॉज एमसीक्यू इज बेसिकली एलिमिनेटिंग द रॉन्ग वंस. जरूरी नहीं तुम्हें करेक्ट आंसर चाहिए. एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड यू गेट द आंसर. अगर तुमने सपोज ऐसे 4 क्वेश्चन किए तो भाई सिंपल लॉ प्रोबेबिलिटी, 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए. गलत में कितने मार्क्स जाएंगे? -2. सही में कितने मार्क्स मिलेंगे? 8. तो यू गेनिंग हाउ मेनी? सो दिस काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क हैज टू बी टेकन इन जेई. 6 मार्क का मतलब है यू आर आउट ऑफ एसपी विजयवाड़ा, नाउ यू इन एसपी दिल्ली. इतना फर्क पड़ता है. नहीं, बट इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, कई बार क्या तो डायमेंशन से, यूनिट से वी कैन एलिमिनेट ऑप्शंस. है ना? तो तुम्हें मालूम है पक्का ये 2 नहीं हो सकते. यू टेक ए चांस, यू आंसर दैट क्वेश्चन. देन नो, फिर तो तुम सारे लीव कर दो. रिलैक्स. बताऊं, जिसके 0 मार्क्स होते हैं मैथ्स में उसका भी परसेंटाइल 60 आता है. दैट इज द स्टोरी. जिसने कुछ नहीं किया बैठा रहा, उसके 60 परसेंटाइल. 60 परसेंटाइल का मतलब कुछ नहीं है. आई वॉन्ट 99 परसेंटाइल इन मैथ्स.
तो लीविंग अ क्वेश्चन इज नॉट द सोल्यूशन, वी हैव टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्टली। अटेम्प्टिंग एंड नॉट आंसरिंग वो भी बेकार है, बिकॉज कंप्यूटर को थोड़ी पता है स्टेप्स के मार्क्स देने हैं तुम्हें। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में तुम्हें स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, आंसर नहीं आ रहा तब भी टीचर मार्क देगा। देयर यू हैव टू आंसर इट करेक्टली, सो टेक चांस ऑन दैट क्वेश्चन विच यू कैन आंसर करेक्टली, रादर देन अटेम्प्टिंग सब कुछ एंड कुछ नहीं किया। तो द क्वेश्चंस क्या होगा, सिलेबस अब कम हो गया है। पहले एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर बोर्ड का सिलेबस 100 11 12 का यूज टू इज 140, 40% एक्स्ट्रा। ये प्री कोविड की बात है। पोस्ट कोविड क्या हुआ, यही सिलेबस कम कर दिया, 70 रहेगा तुम्हारा सिलेबस, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो। और इसमें से भी क्या है, रैशनलाइज कर दिया, मतलब सिर्फ यही आएगा। तो नाउ व्हाट दे हैव डन इज, इसका उन्होंने लेवल बढ़ा दिया, मतलब लेंथी कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं होगा, लेंथी होगा। तो उसमें क्या होगा कि व्हेन यू ट्राई टू डू इट फास्टर यू मेक मिस्टेक्स, इट बी इजी बट लेंथी, वहां प्रॉब्लम होती है। तो जल्दबाजी मत करो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए नो इश्यू, बट आंसर दैट। देखो मैथ्स में हम करीब, तुम्हारा जो एप्टीट्यूड होगा ना जेई का, उसमें तुम 40 मिनट में कर लोगे, 40 मिनट्स, 200 मार्क्स। तो 400 में से तुमने 200 मार्क कर लिया जेई में। फिर मैथ्स करोगे उसके बाद, मैथ्स में तुम्हें देना है कम से कम 90 मिनट्स मिनिमम। मिनिमम 90 मिनट्स दोगे, 90 से ज्यादा भी दे सकते हो, 120 मिनट्स भी दे सकते हो, 110 मिनट्स भी दे सकते हो। और यहाँ पे यू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन ऑन 25, करेक्ट। There's a girl from Bangalore, she's taking online classes. She has got 88 marks in maths. वैसे आंध्रा एंड साउथ के बच्चे वैसे मैथ्स में बहुत ज्यादा करते हैं अच्छा। इवन वन दिल्ली स्टूडेंट गॉट 76 मार्क्स इन मैथ्स दिस ईयर। तो तुम लोग भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है। यू आर गुड, ऑल ऑफ यू आर गुड। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। तो ये वाला वेरीफाइड नहीं हो रहा ना, फिफ्थ नहीं हुआ। नहीं। ओके, क्या आ रहा है इसका एलएचएस बताओ मुझे। 1 1 2 3 4 5 8 9 10। 8 9 10। राइट साइड क्या रहा है काव्य, फिर तुम, ओके। तो ये वेरीफाइड नहीं हो रहा ना, ये गलत था। द नेक्स्ट वन वेरीफाई हो रहा है। दिस इज बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉज, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉज। सेवेंथ वेरीफाई हो गया, देखो ये वेरीफाई हो जाएगा। एट्थ हो गया, कर लो। आई वांट द नंबर्स, क्या आ रहे हैं। फिफ्थ वन, हाँ हाँ, फिफ्थ वन इज नॉट वेरीफाइड। हम्म आज से 3 4 साल पहले देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम डीपीएस आर डीपीएस 645 आरजू, her percentile was 100, her rank was 3 all India. So you guys can do better than that girl also this year. ठीक है, तुम लोग मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। कौन सा वाला, ये लास्ट, और उससे पहले वाला सेवेंथ। हाँ सारे करने हैं। तभी तो पेशेंस इनकलकेट होगा, पेशेंस नहीं है, उसको वही इनकलकेट करना है। दैट इज वन ऑफ द, हाँ नहीं अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा इसका। आई जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज। नहीं वो नहीं है। हाँ ये तो इसका बताओ, ये क्या है।
Union is distributed over intersection. Good. दिव्या सेवेंथ का क्या आ रहा है? वेरीफाई हो गया, दोनों साइड 1 to 10 तक पूरा सेट आ रहा है। 1 to 10 पूरा आ गया ना? हाँ, राइट, परफेक्ट। एंड एट्थ क्या बताया था काव्या? यही है 1 2 3 4, ये लास्ट 1 2 3 4 7 आ रहा है। 7 भी आ रहा है? ये गुमराह करती है काव्या, जल्दबाजी कर रहे हैं मैं। When you know the property, you know the name of the property, also still you make mistake. That is the worst part. नहीं नहीं, तो क्वेश्चन आएंगे ऐसे। यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू राइट इट, दे वोंट आस्क यू द नेम, इसका नाम क्या है, ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन मैथ्स में। सो fourth and 7, they have a name to it. Fourth and 7, no, fourth and 8. This is called distributive property. जैसे सपोज यू हैव 2 into 3 plus 5, है ना? So when you open the bracket, it becomes 2 into 3 and 2 into 5. So similarly, when you say that multiplication is distributive over addition or subtraction, the same way intersection is distributive over union. Intersection B, then union A intersection C. देखो जरा, A intersection B, फिर union A intersection C. So intersection is distributive over union. A intersection B, फिर union A intersection C, जैसे यहाँ पे हो रहा था 2 into 3 and plus 2 into 5. Similarly, look at this result, eighth one. यहाँ पे union distribute हो रहा है, A union B intersection A union C. यहाँ पे union distribute हो रहा है, A union B intersection A union C. So these two properties are called distributive property. लिख लेना. Number 4 and number 8. These are distributive properties. Then और कुछ बचा है, एक और लिखो. पूरा आंसर बताना है काव्या. स्किप कर दिया तुमने, करो उसको. And once I finish one chapter, there'll be MCQ tests also with negative marking. The tests over here will be all MCQ with negative marking plus 4 minus 1. वो वहां पे पूरा स्कोर करना है. नाइन्थ का आंसर बताओ क्या आ रहा है? 1 4 5 6 7 8.
A intersection B whole complement. A intersection B is coming out to be 2 3. So 2 3 छोड़ के सारा आ रहा है ना. And what about this? Last. अद्विका लास्ट का आंसर हो गया. लास्ट वाले का 10th. ठीक है. काव्य 10th हो गया. आंसर क्या है? गुड. दिव्या 10th. Set with element 3. ओके. क्या बात कर रही हो? ऐसा मत बोलो. क्या दिल तोड़ दिया तुमने? ये तो बहुत जोर से वेरीफाइड है. हाँ. It's like this. 2 plus 3 plus 5 equal to 2 plus 3 plus 5. ब्रैकेट वाला इंटरचेंज किया है. वेरीफाई होगा ये. तीनों में जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है. इन तीनों सेट्स में क्या इंटरसेक्शन है? एक ही एलिमेंट है बेचारा. तो ये वेरीफाइड है. नाउ प्रॉपर्टी नंबर. फिर दैट इज द वर्स्ट पार्ट. तुमने अगर क्वेश्चन गलत कॉपी किया उसको सही भी कर दिया, सो पेनफुल इवन फॉर द एग्जामिनर जो उसको चेक करेगा. ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आधा मार्क्स में नहीं मिल सकता उसमें. लुक एट द प्रॉपर्टी 7 एंड द 10th. These two are called associative properties. This is union is associative on, associative दो के लिए हम यूज करते हैं commutative. Like A union B is always B union A, है ना? जैसे कि sum of numbers is, addition is basically commutative. Addition is commutative, है ना? Interchange कर दिया. But difference or subtraction is not commutative. They are not equal. तो for 3 use associative. क्या हो रहा है? एक बी का यूनियन सी के साथ किया, फिर ए के साथ उसका कर दिया यूनियन, जबकि यहाँ पे ए का बी के साथ फिर सी के साथ. सो यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देर ऑलवेज एसोसिएटिव. दे ऑलवेज एसोसिएटिव. और जब तुम यूनियन करोगे तो इनफैक्ट इनवेरिएबली तुम्हें बड़ा सेट मिल ही जाएगा. इंटरसेक्शन बहुत छोटा सा आएगा. यहाँ पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है. एंड देन लुक एट द प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 9. 6 एंड 9 क्या नाम है इसका? Yes. If you have computers, डी मॉर्गन्स लॉज. इनको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है. समझना कैसे? इफ यू हैव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी पे, है ना? और दिस विल इंटरचेंज. यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन. जस्ट रिवर्स हो जाता है वो. कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे कि इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया, ये इनवर्स हो गया, है ना? और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज बी. आ गया. तो डोंट रडोफाई, जस्ट अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. अब आगे बढ़े. वेन डायग्राम करते हैं. वेन डायग्राम पढ़ा है स्कूल में? 3 4 5 जो भी करने हैं. नहीं हम, हाँ ठीक है, हम इसलिए करें बिकॉज दैल बी यूज इन प्रोबेबिलिटी. So for us, it's very important because entrance in probability questions, we can use Venn diagram very easily. That is why our focus on Venn diagram.
Venn diagram is basically geometrical representation of sets and their operations. Venn diagram में यूनिवर्सल सेट को यू रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल. ठीक है. जैसे कि यूनिवर्सल सेट में 1 to 7 एलिमेंट्स है, 1 to 10 सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे. If I want to represent a set, it will be represented by a circle or an ellipse. अब मैं क्या कर रहा हूँ? I'm shading this part. So basically I want to know what is the shaded part. Shaded part is basically over here, n of a, cardinal number of set A. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? I'll draw कई सारे Venn diagram. I'll shade something. You need to answer that कि वो shaded part क्या है in terms of Venn diagram. ठीक है. एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं. तुम सारे को बता देना. दीक्षा नजर आ रहा है? हाँ ओके. आंसर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, राइट? There could be multiple answer also. Do that wherever possible. हम्म. लिखना है और फिर एंड में डिस्कस करेंगे. बिल्कुल ठीक है. बताना नहीं है. जिसने बता दिया उसको -4 मिलेगा. इसका आंसर लिखना है क्या है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. And there could be multiple answers, so you can try as many as ways you want to answer the question. The shaded part, you need to tell me the answer. Same. ठीक है. अब होता ही है ना कि जो क्लास मैंने अभी साउथ सेंटर में थी मेरी मॉर्निंग में, जो उनको वो पढ़ाया था वही सेम आई रिपीट दिस क्लास, सो दैट वी बोथ गो पैरेलल. इफ समबडी मिसेस क्लास ओवर देयर, बिकॉज वहाँ की क्लास हाइब्रिड नहीं होती, सो ही कैन टेक क्लास ऑनलाइन फ्रॉम हियर. वेबसाइट पे जाके ना तुम इस साल का पेपर देख लेना, मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है. मैथ्स जेई अटेम्प्ट जनवरी, सो यू कैन हैव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. एंड ऐसे वेबसाइट पे जाओगे होम पेज पे, वहाँ डाउनलोड सेक्शंस में ना देयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 विद सॉल्यूशन.
सम कुड हैव मोर देन वन आंसर्स, वो ही बता देना कौन सा है। यू आंसर राइट, यू आंसर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एन ऑफ ए, जिसमें एन ऑफ ए लिखा ना, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, राइट। देन राइट आंसर यहीं पे नीचे लिख सकते थे, ठीक है, जब कर लो ऐसे। थर्ड हो गया, बोर्ड पे लिखो थर्ड का आंसर, उसके नीचे लिख दो। यू कैन राइट मल्टीपल आंसर्स। हाँ, और कुछ भी हो सकता है, नहीं कैसे भी, वन क्वेश्चन माइट हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, इसका कोई दूसरा आंसर हो सकता है, थर्ड वाले का, बताओ। वो आ, हम्म, मैं बताओ। दिव्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट, सो कैन आई से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, बी के बाहर, बी के बाहर से आ रहा है ना, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो सिर्फ ये आएगा, आउटसाइड बी, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, दिस पार्ट ओनली, चेक। नो, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो तुम, दिस ऑल्सो फाइन, वो भी सही है। एन ऑफ ए यूनियन बी, परफेक्ट, वो भी सही हो सकता है, गुड। एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी, है ना, परफेक्ट। करो, करते जाओ, कोई डाउट है नंदिनी तो पूछ लो। हाँ, हो गए, कौन सा फाइव, फाइव में तो इंटरसेक्शन हो गया ना, हाँ इंटरसेक्शन बी। कहाँ पे फोर्थ के आंसर लिखो, चार आंसर फोर्थ के, चार आंसर, चलो। हाँ, वहां लिखो, हाँ दिस इंटरसेक्शन बट दिस इज ए यूनियन बी। हाँ, हाँ तो एन ऑफ, ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिखो, दिस एंड, हाँ एन ऑफ दिस, ये क्या लिखा, एन ऑफ ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर एन ऑफ ए डिफरेंस बी यूनियन, नहीं इसको यूनियन, ये सेट्स नहीं है, ये कार्डिनल नंबर है, तो लाइट प्लस, उसको इरेजर से इरेज कर दो, ठीक है, प्लस लिखो वहां पे, प्लस लिखो। और बताओ, दो और बताओ, ऊपर लिख दो, उसके ऊपर लिख दो ना, साइड, उसके ऊपर और ऊपर, तुम्हारे हाथ लंबे हैं, ऊपर भी तो जा सकते हैं, एन ऑफ ए वी माइनस एन ऑफ, ठीक है, एक और बचा है अभी। नो नो, आई मीन एज मेनी एज यू कैन नो, बिकॉज ऑप्शंस, हाँ, मतलब दैट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ना। अरे व्हाई डोंट यू राइट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिखो, एन ऑफ, इसको हटा दो, हाँ, हाँ वो भी हो सकता है, एन ऑफ ए, लिखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अरे ब्रैकेट मत लगाओ, यहाँ देखो ना, चीटिंग कर लो वहां से, वो देखो लिखा हुआ उधर,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला पार्ट हो गया, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी किया है ना, वही तो हो गया ये, दिस पार्ट। हाँ, बी के बाहर का, बी के बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ। कैसे आएगा, इंटरसेक्शन ले रहे हो ना तुम बी के साथ, बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो मतलब ओनली बी पार्ट, बी का आएगा ना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इज कॉमन पार्ट। सो कितने हो गए ना, 4 वेज। सो परफेक्ट, ये हो गया, फोर्थ वाला आ गया हमारा। ये तो हम पता ही है सबको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन विद कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नथिंग इन कॉमन, disjoint also. In terms of language of probability, we call them mutually exclusive. So this is A intersection B. What about this? मैं बताऊँ? This entire thing is हाँ, n ए of u difference, कौन लिखेगा? तुम आओ अद्विका, तुम्हें करना है ये, मैं क्यों कर रहा हूँ? दो आंसर, दो पॉसिबिलिटीज, 1 मिनट, उसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। लिखो, n ऑफ, ठीक है, कार्डिनल में तो प्लस ही आएगा, ये तो वो सेट्स में आता है, ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए सेट। दिस ए दिखाओ, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, आउटसाइड बी, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, सिर्फ ये, दैट्स व्हाई। एंड दिस इज नॉट ए सेट, इज ए नंबर, सो विल बी प्लस साइन। इंटरसेक्शन यूनियन यू अप्लाई फॉर सेट्स, दिस इज प्लस, इसे वेयर, नो, एन यूनियन, हाँ ये तो वही सेम चीज हो गया ना, और कुछ हो सकता है इसके अलावा? देखो डी मॉर्गन लगा दो ना यहाँ पे, हाँ देवशा, देखो यहाँ पे अप्लाई डी मॉर्गन, दिस इज एन ऑफ ए ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लेंट, कॉम्प्लीमेंट, क्या आ गया, यहीं पे हमने वो लगा लिया डी मॉर्गन्स लॉस। ठीक है, गुड, बैठो। सेवेंथ कौन करेगा, इसको करने दो, 100 इन मैथ से है, 99, ठीक है, अब 100 आ जाएंगे, तुमसे मेरे को चाहिए 100 इन मैथ्स, ठीक है। वो तभी आएगा जब दिमाग को ठंडा रखोगी, तुम्हें लगता है मेरे को आंसर देना है अभी, लेकिन तुम दोगे आंसर 5 मिनट बाद दोबारा उसको रिवाइज करके। सो द सिली मिस्टेक्स कंप्लीटली रूल्ड आउट। कितने आंसर बता रही हो? एन अलग अलग कर लो ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो गया, उल्टा लिख रही हो, पेन उल्टा पकड़ो, हाँ वाइट से लिखो, हाँ। अब हम्म, अभी रुको रुको रुको, इज इट करेक्ट और इट्स करेक्ट? नॉट करेक्ट, हाँ, 3n होना चाहिए था, क्या बात करे देवशा, -3n ए इंटरसेक्शन बी ऐसा इंटरसेक्शन, मत बोलो, क्यों? क्योंकि वो तीनों बार इंक्लूड हो रहा है। हम्म, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कार्डिनल नंबर, अगर मैं सेट्स लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेट में रेपिटेशन नहीं होता है, बट वी आर डीलिंग विद कार्डिनल नंबर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन यू डू एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा आ गया, दिस, द पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, द सेंटर पार्ट इज काउंटेड थ्राइस, तो उसको तुम माइनस करोगी, तो 3 टाइम लिख दो वहां पे, एन के आगे 3 लगा दो बस, ये इसका आंसर सही है। और एनी अदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, इसका अलावा कुछ और है? छोड़ दो उसको, इंटरसेक्शन बी को उसमें कन्वर्ट करके फॉरगेट इट। एट्थ करो,
एट्थ के आई वांट 4 आंसर्स आएंगे। सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, चीटिंग कर लो। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, चीटिंग कर लो। सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो तुमने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, रिवाइज कैसे करोगे? सारा लिखो एक बार क्वेश्चन। नहीं, बनाओ सारे। हाँ हाँ, ये जो नोटबुक होगा ना तुम्हारा, इट विल बिकम लाइक एवरीथिंग। नहीं कोई बात नहीं, इसी सारे लिखो। कोई बात नहीं, फिर भी लिख लो, अभी तो रिवाइज करेंगे ना, बताओ। हम्म। ये है ए प्लस, मतलब ए यूनियन बी हो गया ना भाई, देखा जाए तो ये एक तो यही हो गया, एन ए यूनियन बी। हम्म। कैसे? बट इन दैट द मिडिल वन इज काउंटेड ट्वाइस, है ना? सो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एंड देन, नहीं माइनस कर दिया ना, वो माइनस कर दिया ना वंस। द इंटरसेक्शन पार्ट इज काउंटेड ट्वाइस, आई सब्ट्रैक्टेड वंस। सी, अगर तुम यहाँ पे n की जगह p लिख दोगे, दिस विल बिकम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इफ इन प्लेस ऑफ n यू राइट p, तो ये लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी जो कि हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं इसी साल। और बताओ। ओके, n ऑफ यूनिवर्सल सेट डिफरेंस n ऑफ a, हम्म, विच इज बेसिकली n ऑफ a यूनियन b ओनली। और बताओ, बोलो। ना, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a प्लस, माइनस मत बोलो, फाउल हो जाएगा। ओ, डिफरेंस है वो। n ऑफ a डिफरेंस b प्लस n ऑफ b डिफरेंस a प्लस n a इंटरसेक्शन b। परफेक्ट। माइनस तो नॉर्मल एल्जेब्रा में यूज करते हैं नंबर्स के लिए, यहाँ पे विल बी यूजिंग डिफरेंस। अगर सेट्स का बोल रहे हो तो डिफरेंस यूज करोगे। तो शी सेइंग एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, ये काफी काम का है, दिस पार्ट इज दिस, राइट? सेंट्रल पार्ट इज दिस, एंड दिस पार्ट इज दिस। हाँ, दिस इज ओनली ए, वही है वो, एग्जैक्टली ए, राइट? और कुछ हो सकता है? एक और बचता है बस। मैं बताऊँ? यूनिवर्सल सेट के अलावा वो तो हो जाएगा, बट यहां तुम देख ही नहीं रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बहुत काम आएगा। ए डिफरेंस बी इज ऑलवेज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ये कैसे आ रहा है। हाँ, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज बेसिकली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको समझो, मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये। व्हेन यू डू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी के बाहर का सारा, राइट? When you find intersection with A, that means this part only. That is A intersection B complement. So this part is A intersection B complement. Well, बीच वाला part will be the same. Plus n of, ये क्या होना चाहिए? B inter, yes, वो आ गया। अब क्या बचा है? ये हो गया ना, दिस इज फाइन, ये तो कर लोगे। ये तो पता लग रहा है, दिस इज ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट करना है ना, नाइन्थ। दिस इज ए, ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट, विच इज ऑल्सो, क्या लिखोगे इसको?
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम्म। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Yeah, this is also fine because this part plus the central part. A intersection B complement. A intersection B complement और फिर दोबारा पूरे का complement. No, if you do it like that, it'll be n of A complement intersection B. So A, अच्छा ऐड भी करना है फिर वो लंबा हो जाएगा. यूनिवर्सल सेट, n of यूनिवर्सल सेट प्लस, या ठीक है वो सही है. n of यूनिवर्सल सेट डिफरेंस n of A union B plus n of A intersection B. Now move to that one. 10th बताओ. 10th बहुत important है. A union B union C. और बताओ इसका एक और. फुल कॉम्प्लीमेंट. वो तो वही हो गया सेम. इसको जो फॉर्मूला है इनफैक्ट वो ये है n of A. कैन आई राइट इट लाइक दिस? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इट्स इनकरेक्ट ना, बिकॉज डबल. हाँ, तो ऐसे करो, डू वन थिंग, इसको करेक्ट करो. -2n ए इंटरसेक्शन टू बी। टू क्यों आएगा? क्योंकि एक बार तो इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ. अब बताओ, तुमने किया हुआ है ना? तो प्लस होगा माइनस होगा? एक बार होगा, दो बार होगा? पक्का? करेक्ट है. दिस इज अ फॉर्मूला यूनियन ऑफ सेट्स ए और बी और सी. अगर एन को पी डाल देंगे प्रोबेबिलिटी बन जाएगा. एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी किया तो ये वाला डबल काउंट हो रहा है ना. इनको एक एक बार माइनस कर दिया. माइनस करने पे क्या हुआ, ये बीच वाला पार्ट बिल्कुल ही हट गया है ना. तो दैट्स वाई यू हैव टू एडिट वंस. तो ये रिजल्ट याद कर लेना. कोई डाउट है तो पूछ लो अभी इसमें. वी हैव टू एड इट एटलीस्ट वंस. दिवशा क्लियर होगी बात ये? हम्म। व्हाट अबाउट 11th? ये तो बहुत सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ. यस. एंड द 12th वन, इज इट ए माइनस बी और ए बी बी? हाँ, तो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए. दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी. एन ऑफ ए डिफरेंस बी. परफेक्ट. कौन सा? या, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज बी, यहाँ पे एक और चीज हो रही है, बी सबसेट ऑफ ए. अदरवाइज देखा जाए तो वही है ये. ओनली ए है ना. इट इज ओनली ए. अब असाइनमेंट खोलो, टाइम है ना अभी तो. असाइनमेंट लाओ तुम मैथ्स का. पेज 7 क्वेश्चन नंबर 2 करो. पेज 7 क्वेश्चन 2 M2.
ये वाला नहीं, कहाँ गया ये, क्या हो गया? अच्छा ये वाला 7 अलग है क्या? हम्म, तुम्हारे में चेंज क्यों है? इट्स डिफरेंट। ये रहा। एंड योर थिंग इज सिक्स्थ, कर लो। सेकंड क्वेश्चन, पेज 7। अच्छा नहीं, पेज 6 पर है, पेज 6 क्वेश्चन 2, वेन डायग्राम। पेज 6 क्वेश्चन 2। तुम्हारे में 7 था पेज, कर लिया ना ये? कर लो कर लो। हाँ। या क्या आंसर है? 600। हम्म। थर्ड भी कर लो फिर। इसमें क्या फाइंड करना था सेकंड में? ए कॉम्प्लीमेंट। एन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लगा लो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, दैट इज एन ऑफ यू ए इंटरसेक्शन में। तो यू हैव एन ऑफ यू 700, वो 100 है तो 600 आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 3 भी करो। हम्म। थर्ड वन। यू कैन यूज वेन डायग्राम, यू कैन यूज फॉर्मूला, विच एवर यू वांट। फॉर्मूले से भी आएगा, वेन डायग्राम से भी आएगा, 3 वाला है ना ये। हाँ। क्या है, टी कॉफी मिल्क? कैन यूज वेन डायग्राम ऑल्सो, अदरवाइज यू हैव दिस फॉर्मूला जो अभी किया था हमने। सो आई थिंक फॉर्मूला से बेटर वेन डायग्राम होगा। वेन डायग्राम में सबसे पहले यू फिल द इंटरसेक्टिंग पार्ट। हाँ ठीक है। वेन डायग्राम से कर दियो ना। वेन डायग्राम से कर लो। नहीं आ रहा? अच्छा। वे क्लासेस हमारे अभी? अच्छा, मैथ्स क्लास है ना। हम्म। आंसर चेक करो, पीछे आंसर है। क्वेश्चन 3।
3 का क्या लिखा, बी? ठीक है, गुड। मेरा आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 40। यस, दैट्स करेक्ट। आंसर्स आर द बैक ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस भी, नेक्स्ट 8 तक कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश इट ऑफ। I'll see you in the next class. Ending the class. थैंक यू। Okay.